मेन टास्क ऑफ द डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ। जैसे कि अभी सारे लोग आप लोग बोल रहे थे कि जनरल क्या मतलब एक्सप्लेनेशन आपका अगर देखें कि हीमोग्लोबिन इज बेसिकली ए क्या कहेंगे क्रोमोप्रोटीन। हीमोग्लोबिन इज ए क्रोमोप्रोटीन दैट दैट हैव ए पर्टिकुलर मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड दिस chromoprotein consisting of colorless globin and four red color heme molecules that is present into the structural part of hemoglobin. Hemoglobin, the main component, hemoglobin is the main component of the RBC, is a conjugated protein that serve as the vehicle for the transportation of oxygen and carbon dioxide. जैसे कि अभी एक स्टूडेंट ने बताया ही था स्टार्टिंग में। हाँ, a molecule of hemoglobin consists of two pairs of the polypeptide chain। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिक चीज तो हम सारे लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन एक रेड आरबीसी का कॉन्जुगेट प्रोटीन है दैट सर्व एज द vehicle for the transportation of the oxygen and carbon dioxide. Fully saturated, each gram of hemoglobin hold approximately 1.34 ml of oxygen, ठीक है। And the red cell mass of an adult contains approximately 600 gram of the hemoglobin and capable to carrying 800 ml of the oxygen, ठीक है। And a molecule uh, a molecule of hemoglobin consists of two pairs of polypeptide chain of globin protein and four prosthetic heme group, each containing one atom of the ferrous ion, each containing one atom of the ferrous ion. It's have a special chemical structure। कई बार आपसे केमिकल स्ट्रक्चर इसका पूछा जाता है, दैट आई एम शोइंग टू यू। अभी जस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, कैमरा ऑन करके। You just see this, and this diagrammatic representation is given into the book, ठीक है। आप सारे लोग देख पा रहे हैं नहीं बेटे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, और एज पर दिस स्ट्रक्चर आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे क्या देखिए CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप आपका ईच एंड एवरी क्या नाम है साइड पे फ्रीली अटैच है, ठीक। एंड वन आयनिक रिप्रेजेंटेशन इज गिवन, वन आयनिक दिस वन ये दिस, ठीक है। दिस इज द आयनिक फ्री फेरस आयन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि देयर इज ए क्लासिकल अरेंजमेंट ऑफ molecules given to one molecule of the hemoglobin that is into the center. You just see a ferrous ion is hello students, audible? Yes, sir. एक्चुअली एक सेकंड ये फोन आ रहा है, ठीक है। एज पर दिस स्ट्रक्चर यू जस्ट सी दैट दिस hemoglobin is hemoglobin contain basically if a iron iron component centrally located into the structure, ठीक है। and that iron is binded with the four prosthetic component of the this क्या नाम है prosthetic heme group, and each containing one atom of the iron, and each heme group is precisely located in a pocket or fold of one polypeptide chain, and that is located near the surface of the molecule, the with one molecule of oxygen or carbon dioxide, ठीक है। and
at least three distinct hemoglobin types are right now are in observation or identification, that is named as HB capital A. Number two is the HB capital F, and third one is the HbA2. Okay, these are the three main uh, hemoglobin type that are that are used into the diagnostic procedure for the identification process. Uh, if there is need, then you should apply to find out the particular concentration of the particular type of the hemoglobin uh, present into the system. एक मिनट में थोड़ा सा next one is that HbA. Actually, HbA is the major hemoglobin type that consists 96 to 98% into the uh, system. And this is the normal adult hemoglobin. This is the normal adult hemoglobin. The polypeptide chain of the hemoglobin part of the molecules are of two types, two identical chain, that is the alpha chain, and each with 141 amino acid. Okay. And two identical beta chain with 146 amino acid. Okay. And HbF. HbF is the major hemoglobin of the fetus. F matlab fetus and the newborn infant. That here the two alpha chain are identical to those of HbA, and two gamma chains with 146 amino acid residue differ from beta chain. Only traces of HbF is found into the adult one. Okay. And third type is the HbA2. Actually, HbA2 accounts for approximately 1.5 to 3.5% of the normal adult hemoglobin. It have two alpha chain are the same as to HbA and HbF. Its two delta chain differ from the beta chain in only 8 of their 146 amino acids. Then uh, there is a another hemoglobin that is reported into the embryonic stage. Okay. Here the zeta chain is the embryonic analog of alpha chain and may combine with epsilon chain to form HB goer, goer 1, or with gamma chain to the form HB Portland 1. HB Portland 1. The epsilon chain is the embryonic counterpart of the gamma, beta, and delta chain and combines with alpha chain to form hemoglobin HB goer, GOWER 2. That means HB2 alpha 2 epsilon 2. HB goer 1, HB Portland 1, and HB goer 2 are the embryonic hemoglobins and are found in normal embryos and fetus into the gestational age. Okay. This is the various types of the hemoglobin, and these are distributed at various stages of the human life. Then how the question arises that how the hemoglobin synthesized, कैसे ये बनता है, ठीक है, एंड हीमोग्लोबिन कहाँ पे बनता है, what are the site of the hemoglobin formation, बताएगा कोई स्टूडेंट? सब बोन मैरो। बोन मैरो, ठीक है.
ठीक है. And how this will be for? Can you repeat? How the formation of hemoglobin occurs? Sir, I don't know. तो तुमसे हम थोड़ी पूछे, हम सारे स्टूडेंट से पूछ रहे हैं बेटे. सॉरी सर, हमें लगा हमसे पूछ रहे हैं. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. हम आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स. किसी को बताओ तो वो बता सकता है कैसे बनता है. जैसे कि बहुत से आंसर अभी अभी बच्चों ने दिया है. ठीक है. तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ दिस हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज. नहीं पता है. ठीक है. एक्चुअली this heme synthesis occurs in the most cells of the body except mature erythrocyte. जो mature erythrocyte हो जाती हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस उसमें आपको बताया कि कुछ mature erythrocytes बन जाती हैं जो कि आरबीसी बनाती हैं. But except the mature erythrocyte, but most abundantly the heme synthesis into the erythroid precursor. जैसे कि अच्छा, अभी erythropoiesis आपको नहीं पढ़ा है. आपके उसमें जब erythropoiesis होगा, erythropoiesis में there is various stages. ठीक है. प्रिकर्सर होते हैं, प्री प्रिकर्सर होते हैं, देन उसके बाद आपका मतलब नॉर्मोसाइट्स होते हैं, नॉर्मोब्लास्ट नॉर्मोसिटिक इरिथ्रोइड सेल्स होते हैं, देन एट द एंड आपका आरबीसी बनता है. ठीक है. उसमें होता क्या है, जब प्रिकर्सर से हम स्टार्ट करते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो सेल की साइज वो बड़ी रहती है. जब आप कभी पढ़िएगा तो आपको मिलेगा, इस चीज़ से जानकारी मिलेगी. सेल की साइज बिगर होती है. हाँ. और प्री इरिथ्रोइड फॉर्मेशन प्रिकर्सर सेल्स में हीमोग्लोबिन नहीं होती. हीमोग्लोबिन कम होता है. लेकिन जब हम क्या नाम है, पोस्ट इरिथ्रोइड प्रिकर्सर सेल में जाते हैं, मींस इरिथ्रोइड प्रिकर्सर सेल पे जाते हैं, तो वहां पे हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होने लगता है. जब हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होगा तभी हमारा जो रेडिश कलर का जो अपीयरेंस होता है आरबीसी का, वो दिखाई पड़ता है. जब तक आप जब स्टेन करते हैं, वेरियस प्रिकर्सर को स्टेन करेंगे तो आरबीसी को, तो आप ये देखेंगे स्टार्टिंग में वो क्या होता है, ब्लू कलर का स्टेन देता है. लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर रिथ्रोसाइट बना रहा है तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है. दिस रेड कलर शोज कि वहां पे हीमोग्लोबिन स्टार्ट हो गई बननी. लेकिन जब मैच्योरेशन स्टेज आ जाती है तो वहां पे हीमोग्लोबिन सिंथेसिस नहीं होती. ठीक है. यहाँ होता कैसे, देयर इज एन एंजाइम सक्सिनिल कोएंजाइम ए. From the tricarboxylic acid cycle, the condense that condense with the glycine to form the unstable intermediate alpha amino beta keto adipic acid, which is readily decarboxylated to delta amino levulinic acid, that is also known as ALA. This condensation requires pyridoxal phosphate, means vitamin 6, and occurs into the mitochondria. The molecules of alpha amino levulinic acid condense to form the monopyrrole 4 4,4-bilinogen and catalyzed by the enzyme ALA dehydrase. Then after 4 molecule of 4,4-bilinogen react to form uroporphyrinogen 3 or porphyrinogen 1. The type 3 isomer is converted by way of the coporphyrinogen 3 and protoporphyrinogen 2 protoporphyrin molecule. This porphyrin molecule is the backbone for the synthesis of hemoglobin. And then after, iron is inserted into protoporphyrin by the mitochondrial enzyme ferrochelatase to form a heme moiety, जो स्ट्रक्चर हम आपको दिखा रहे थे अभी. Then after that structure will be formed. Then the globin synthesis occurs into the cytoplasm of the
blast cell and reticulocyte. The polypeptide chain are manufactured on the ribosome. A specific small soluble RNA molecule determine the placement of each amino acid according to the code of the messenger RNA. Then progressively growth of the polypeptide chain begins at the amino acid. This process of the protein synthesis occurs on the ribosome, and then after that will be clustered into polyribosomes, which are held together by the mRNA. This polypeptide chain released from the ribosomes are folded into the three-dimensional configuration, and the complete globin structure consists of four polypeptide chains formed by the two dissimilar pairs, and the control of hemoglobin synthesis is extremely through the action of the heme molecule. The increased heme inhibit the further heme synthesis by the inhibition of the activity of ALA synthase. The heme also promoted the globin synthesis mainly at the site of the chain initiation and the interaction of the ribosomes with the mRNA. This successive process will be uh, going on and the formation of hemoglobin will occur. ठीक है, तो इसमें होना क्या है कि जैसे आप सबसे पहले क्या होता है कि आपका हीम मॉलिक्यूल जो होता है वो आपके इरिथ्रॉइड प्रिकर्सर सेल में अपीयर होता है, और वहां पे क्या होता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए फॉर्मेशन होने के बाद वो मॉलिक्यूल जो आपका जनरेट हुआ प्रिकर्सर में वो कंडेंस हो जाता है, और दैट इज कंडेंस विद द ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के साथ में कंडेंस होकर के अल्फा अमाइनो एंड बीटा कीटो एडिपिक एसिड बनाता है. ठीक है, एंड उसके बाद ये डी कार्बोक्सिलेटेड होंगे दोनों अल्फा अमीनो एंड बीटा कीटो एडिपिक एसिड, एंड वहां पे अमीनो लेवनिक एसिड बनता है जिसको कि एएलए कहते हैं. आपको कई बार एएलए टेस्ट भी मिलेगा, जब स्पेशलाइज्ड टेस्ट कैटेगरी में आता है एएलए का, कि वहां पे हीमोग्लोबिन सिंथेसिस हो रही है कि नहीं हो रही है. इस बात को अगर पता लगाना है देन आफ्टर यू विल प्रिस्क्राइब एएलए टेस्ट, अमीनो लेवनिक एसिड टेस्ट होता है. ठीक है, ये किस केसेस में होता है, जैसे कि जिन केसेस में जैसे कि आपका ल्यूकीमिया हुआ है ना, वहाँ पे हीम आपका हीम सेल फॉर्मेशन आपका हो ही नहीं रहा है. ठीक है, ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिसमें कि इस टाइप के टेस्ट हम लोग रिकमेंड करते हैं. देन ये क्या जो कंडेंस फॉर्म जो है आपका वो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरोक्सिल फॉस्फेट एंजाइम की प्रेजेंस में कंडेंशन होकर टू मॉलिक्यूल बनाएगा, और देन आफ्टर कैटेलाइज होकर के पोरफायरिन मॉलिक्यूल बनाता है 3, 2 एंड 1. ठीक है, उसी समय उस आपके साइटोप्लाज्म में ग्लोबिन सिंथेसिस होती रहती है. ग्लोबिन सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर जो आपका वो एमआरएनए है, दैट विल बी सिंथेसाइज्ड इनटू द योर क्या नाम है आपके सेलुलर सेल साइटोप्लाज्म बन रहा है. देन उस आपका जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज करता है. देन वो चेन पॉलीपेप्टाइड चेन, ग्लोबिन मॉलिक्यूल, हीम मॉलिक्यूल एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में सेट हो जाते हैं कॉन्फॉर्मेशनल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग. ठीक है, देन आपका टोटल एंटायर हीमोग्लोबिन बनता है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस. ये आपका प्रोसेस है. ठीक है, तो एज पर माई मतलब जस्ट जैसा कि मैं सोचता हूँ कि अभी तक तो आपको ये प्रोसेस नहीं पता होगा, किसी भी बच्चे को नहीं पता होगा. ठीक है, तो आपको ये मतलब बहुत जरूरी है कि हीमोग्लोबिन सिंथेसिस कैसे होती है, उसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है, दैट इज द इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो आप एक असाइनमेंट लिखिए, एक्सप्लेन स्टूडेंट्स, एम ऑडिबल? Yes, sir. Yes, हाँ sir. लिखिए, हाँ लिखिए, एक्सप्लेन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस. ठीक है, जो अभी हमने आपको बताया है, आप आपके पास जो भी फिजियोलॉजी की बुक हो, टॉर्टोरा की बुक हो या इनकी ब्राउन की बुक हो, आप उससे कंसल्ट करके आप इसको लिखिएगा. तो देन आफ्टर ऑल द क्वेरीज विल बी कन्फर्म. जब आप लिखेंगे ना तो आपको कुछ चीज़ें नहीं भी पता चलेंगी, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी. देन आफ्टर यू विल मतलब कॉन्टेक्ट मी,
आप हमें फ़ोन करिए ना, हम बताएंगे आपको कि उसमें कौन सा चीज़ें बच रही है। अब हीमोग्लोबिन तो बन गया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? अभी बहुत से बच्चों ने बताया कि देयर इज सो मेनी टाइप ऑफ द फंक्शन, द मेन फंक्शन इज दैट कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग टू द टिश्यू। हाँ, ये मेन फंक्शन के कैटेगरी में आता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग टू द टिश्यू एंड same time after the matlab this hemoglobin also transfer the carbon dioxide from the tissue to the outside system into the reverse direction, means hemoglobin helps into the transport of the oxygen and carbon dioxide, ठीक है, and it also assisting in acid base regulation by the eliminating this carbon dioxide molecule, by the eliminating this carbon dioxide molecule from the your body system. This assisting the acid base regulation by the eliminating carbon dioxide in the lung and by the buffering action of the hemoglobin. दिस इज द मेन कोर फंक्शन। आपका जो हीमोग्लोबिन जो है उसका मेन कोर फंक्शन आपका है, तो दिस इज द टू मेन फंक्शन, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एक्सप्लेनेशन, यू मे आस्क स्टूडेंट। किसी को कोई चीज नहीं समझ में आया है अभी पूछ सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। एक्चुअली हीमोग्लोबिन इज ए क्रोमो प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ द कलरलेस ग्लोबिन एंड 4 रेड कलर्ड हीम मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन इज ए metal complex containing an iron in the center of the porphyrin structure. The globin molecule consists of the two peptide chain, each made up of the several amino acids. Heme synthesis occurs in most of the cell of the body except the mature erythrocyte, but most abundantly in erythroid precursor succinyl coenzyme A react with the glycine, which by the series of the steps form heme molecule. And globin synthesis occurs in the cytoplasm of the normoblast and reticulocyte. Normal adult hemoglobin HbA consists of the 4 heme group and 4 polypeptide chain, and this is hemoglobin is main component of the red blood cell, have 120 day of the lifespan. After that, this RBC will be destroyed into the spleen. Then here again all the component will be released into the circulatory system. At the cell age, activity of certain glycolytic enzyme is diminished and cell assume to a smaller surface area. These are lyzed by the your restriction enzyme system and removed from the circulation, ठीक है। so this is the basic and this is the detailed hemoglobin uh, structure, explanation of structure, formation and function. Then why this is important into the diagnostic? This is important into the diagnostics to identify the blood related disorder. Hmm. And this will be possible with the help of the estimation of hemoglobin present into the system, ठीक है। and this hemoglobin estimation, आप इसमें नेक्स्ट हम आप कहाँ जा रहे हैं, आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जा रहे हैं, ठीक है। आप राइट डाउन करिएगा ऑब्जेक्टिव 7, ऑब्जेक्टिव 7 hemoglobinometry, hemoglobinometry, various method of estimation of hemoglobin, error involved and standardization of instruments, adaptations for HB estimation, for HB estimation, ठीक है। There are so many type of the method that are involved into the
estimation of the hemoglobin that are covered into this objective. ठीक है. Then इसमें requirement क्या होगा? What are the main requirement for the hemoglobin estimation? There is first of all there is so many method. ठीक है. First next लिखिएगा method of hemoglobin estimation. Number one, colorimetric method. Colorimetric method. Number two, acid hematin and alkali hematin method. And alkali hematin method. ठीक है. ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए आप सहलीज मेथड. SAHLIS सहलीज मेथड. ठीक है. And third one is the molecular estimation of hemoglobin using electrophoresis. Molecular estimation of hemoglobin using electrophoresis. तो आपका क्या हुआ? कौन कौन से मेथड होगा बताइएगा निहारिका. निहारिका लिख लो ही नहीं. निहारिका am I audible? हाँ ओजस्वी. Yes, sir. हाँ बताइए कौन कौन से मेथड हैं ब्लड एस्टिमेशन के. अदिति तिलक कैमरा ऑन करिए तो फटाफट से. सारे लोग कैमरा ऑन करिए, सारे जितने भी लोग हैं आप. Yes, sir. अदिति तिलक बताइए कौन कौन से मेथड हैं एस्टिमेशन के बेटे. Sir, colorimetric वेरी method, गुड. acid hematic and alkaline hematic method, वेरी गुड. वेरी गुड. and third one is molecular estimation of hemoglobin using electrophoresis. वेरी गुड. ठीक है. जस्ट आई एम चेकिंग दैट कि हाउ मच यू पीपल आर द अटेंटिव बिकॉज इन ऑनलाइन क्लासेस. आप ऑफ कर लीजिए अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए. ठीक है. देन देयर इज एक्चुअली क्या है कि जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है वो तो कंप्लीट हो गया है. डिटेल हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर और स्टडी एंड फंक्शन दैट इज कंप्लीटेड. मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा प्रैक्टिकल का है. 7 प्रैक्टिकल नंबर है जिसको कि हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं. उसका ऑब्जेक्टिव है हीमोग्लोबिनोमेट्री. ठीक है. हीमोग्लोबिनोमेट्री इज द प्रोसेस फॉर द estimation of the blood. ठीक है. what is the hemoglobinometry? This is the process by which you should estimate the hemoglobin concentration. ठीक है. and there is various method of the estimation of the hemoglobin. कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1 is the colorimetric method होगा. नंबर 2 acid hematin method होगा. and third one is the your hemoglobin electrophoresis. एक्चुअली तीनों मेथड के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग प्रोसीजर है. तो आप एज ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हम आपको आज ही ये सारी चीज़ें बता देंगे. कारण क्या है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. हर एक मतलब सेमेस्टर में आएगा कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में. और दिस इज द बैकबोन. दिस एक्सपेरिमेंट इज द बैकबोन ऑफ द हेमेटोलॉजी. ये पूरे जितने हम बात कर रहे हैं अगर ये नहीं पता तो कुछ नहीं पता है. ये सेंटेंस आता है. अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे और ये पूछे कि व्हाट आर द मेथड फॉर द हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन और आप चुप रहे, आप आंसर न दे पाए, दैट मीन कि आपको कोर्स करने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना. ठीक है. दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग टुडे इन डिटेल. ठीक है. एंड दीज ऑल 3 मेथड्स आर अवेलेबल इन माय लैब. यहाँ पे जो आपकी आर्जेस्टिक लैब है वहाँ पे ये तीनों चीज़ें हमारे पास हैं, उसको हम करते हैं. जब कभी भी आप आएंगे या ऑनलाइन ही हम आपको इंस्ट्रूमेंट, अभी हमारा लैब जब ओपन होगा देन आई विल शो टू यू. ठीक है. फर्स्ट वन इज द क्लोरोमेट्रिक मेथड. इसमें क्या है कि आपको एक्चुअली एक फोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है. रिक्वायरमेंट में लिखिए फोटोमीटर.
फोटोमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और दूसरा आपका स्टैंडर्ड hemoglobin cyanide standard, and these three and potassium cyanide standard, potassium cyanide standard, potassium ferricyanide standard. This is the requirement. प्रोसेस में लिखिए, प्रोसीजर लिखिएगा. And aliquot of ALIQUOT, aliquot of well mixed whole blood is taken and it is diluted in a solution of potassium ferricyanide and potassium cyanide. Next, हाँ बेटे फिर से बताइए. Diluted in diluted in a solution of, हम अभी कैप्शन अपना ऑन कर दे रहे हैं तो वहां पे भी आपको हेल्प मिलेगी. एक सेकंड रुकिए. कैप्शन ठीक है. हाँ फिर से प्लीज राइट डाउन. एन एलिकॉट ऑफ well mixed whole blood is taken and it is diluted in a solution of potassium ferricyanide and potassium cyanide. Second step लिखिएगा. The potassium ferricyanide oxidized hemoglobin to hemocyclobin to form hemoglobin cyanide complex. Next point, the hemoglobin cyanide has a broad absorption maximum at wavelength of 540 nanometer nm. Then लिखिएगा. Next point है, it is measured in photometer or a spectrophotometer at 540 at 540 nanometer and compared with the standard hemoglobin cyanide. ठीक है. ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है. दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड. बहुत पहले हम लोग इस तरह से करते थे. आज की डेट में क्या है, ये सिर्फ आपका डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस कॉलेज लेवल पर आ गया है. बहुत ज़्यादा हम इसको क्लिनिकल पार्ट में नहीं यूज करते हैं. सेकेंड वन इज द एसिड हिमैटिन एंड एल्कली हिमैटिन मेथड. What was the last point you said? ठीक है. लास्ट पॉइंट, इट इज मेजर्ड इन फोटोमीटर or a spectrophotometer at 540 nanometer and compared with that of the standard solution ठीक है. इतना क्लियर है? इफ एनी डाउट, एनी क्वेश्चन यू मे आस्क स्टूडेंट्स. This is the important part that I am covering to you, मतलब for you. सर कोल्ड ब्लड का मतलब वो कोल्ड वाला ही कोल्ड है या फिर कुछ और मतलब है सर? कोल्ड ब्लड कहाँ पे हमने बोला अभी? होल ब्लड बोला था सर. वो होल ब्लड है राहुल. होल सॉरी ब्लड है बेटे. होल मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने 2 ml लिया होल ब्लड, मतलब उसमें से कोई क्या नाम है कंपोनेंट को आपने निकाला नहीं है. दैट मीन कि उसमें क्या है, आपका एंटीकोगुलेंट एडेड है. होल ब्लड यहाँ वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि कोई भी एंटीकोगुलेंट, अभी हम एंटीकोगुलेंट के चैप्टर पे समझेंगे. जैसे कि हमारी बॉडी में हेपारिन होता है. हाँ,
डिटेल होगा, कौन कौन सी ट्यूब यूज करनी, कहाँ कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है। हाँ, तो होल ब्लड का मतलब है कि उसमें एंटीकोगुलेंट एडेड है, तो आपका जो ब्लड होगा जिसको आपने कलेक्ट किया है ट्यूब में, वो क्लॉट नहीं होगा, समझे। तो जैसे कि हमने 2 ml लिया, तो 2 ml ब्लड अगर एंटीकोगुलेंट में ऐड किए हैं तो उसको हम प्रॉपरली थोड़ा सा मिक्स करेंगे। देन आफ्टर उसको क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, किसके साथ, पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ, इक्वली वॉल्यूम में लेकर के 1:1 रेशियो में कर सकते हैं। देन क्या करेंगे, पोटेशियम फेरिसाइन, इसमें क्या होगा, आप जब हम उसको डाइल्यूट करेंगे मिक्स करके पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ, देन वो क्या करेगा, पोटेशियम फेरिसाइनाइड ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है ना। ऑक्सीडाइज होकर के हीमोसाइक्लोबिन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हीमोग्लोबिन साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसका कि हम लोग मेजर करते हैं। दैट विल बी मेजर इनटू द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। एक ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, हाँ, जिसमें जो कि लैम्बर्ट स्लैब पे काम करता है, और जब भी हम चाहें किसी भी सोल्यूशन का, किसी भी जो लिक्विड है उसकी एब्जॉर्बेंस उसमें निकाली जाती है, और दैट एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। ये फिजिक्स का एक रूल है जिसके बेसिस पे हम इसको कन्वर्ट करके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, समझे राहुल। यस सर। एनी अदर डाउट, एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी आज आप थोड़ा सा मतलब जो भी आपके पास डायग्नोस्टिक की बुक हो हेमाटोलॉजी की, उसमें आप इसको पढ़िएगा, हाउ टू एस्टिमेट हीमोग्लोबिन यूजिंग पोलोरीमेट्रिक मेथड। ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए, हाउ टू एस्टिमेट हीमोग्लोबिन यूजिंग पोलोरीमेट्रिक, COLORIMETRIC, पोलोरीमेट्रिक मेथड, ठीक है। तो हमने अभी आपको ये ब्रीफ लिखा दिया। सेकंड, जब भी हम क्लास आपका लेंगे तो आपका एसिड हिमैटिन मेथड और इलेक्ट्रोफोर्सेस दोनों कंप्लीट है, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू मे आस्क स्टूडेंट। सर सर आप बफरिंग एक्शन आप हीमोग्लोबिन नहीं सुने हैं सर, फिर से बता दीजिए एक बार। एक्चुअली बफरिंग एक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन का मतलब ये है कि जितना कन्वर्ट हो चुका है बस उतना ही, उसके बाद वो बफर एक्शन जब क्रिएट कर देगा तो आपका हीमोग्लोबिन साइनाइड कन्वर्जन रुक जाएगा, समझे कि नहीं, उसके बाद वो कन्वर्जन नहीं होगा। बफर मतलब क्या होता है, बफर मतलब होता है टू मेंटेन, समझे कि नहीं। जब आपने क्या किया, आपने साइनाइड को ब्लड में ऐड किया, देन एक कॉम्प्लेक्स आपका हीमोग्लोबिन साइनाइड बना, और जब बफरिंग एक्शन आपका उसमें आ जा रहा है, देन दैट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द अदर कंपोनेंट, ठीक है। यस सर। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट। सर आप जो हीमोग्लोबिन का फंक्शन फॉर्मेशन सर बता रहे थे, उसमें सर एक वर्ड था पायरोक्सिल फॉस्फेट बॉन्ड, सर उसका फंक्शन, और एक सर वर्ड था सर पोलफायरिन। पोरफायरिन मेन स्ट्रक्चर होता है, जो हमने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया था। हाँ, एक पोरफायरिन का मतलब ये होता है कि एक आयरन मॉलिक्यूल 4 मतलब उससे बंधा हो, क्या नाम है आपका, एमीन ग्रुप, दैट इज द पोरफायरिन, ठीक है। जो आपका एक आयरन अगर 4 नाइट्रोजन कंपोनेंट से बंध जाए तो दैट इज नोन एज पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स, समझे दीपक। ओके सर। और सर इसीलिए तो मैंने ये वाला पार्ट तुमको राइट डाउन करने के लिए लिखा है, क्योंकि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। आपको जनरल चीज़ें तो बहुत पता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाता है, ये करता है वो करता है, लेकिन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस नहीं पता है, समझे कि नहीं। तो आप उसको एक बार जब लिखेंगे, अपना जो भी आपका रेफरेंस बुक होगी, देन आफ्टर यू हैव सेवरल क्वेश्चन। अगर जो भी स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे, क्योंकि मैं तो आपके साथ रहूँगा नहीं, आप हो सकता है लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, वो आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन जो भी स्टूडेंट लिखेगा उसके ढेर सारे क्वेश्चन उसको एराइज होंगे, और नो डाउट वो मुझसे बात करेगा। हाँ बताइए सावन। सर किडनी का भी कोई रोल होता है क्या हीमोग्लोबिन सिंथेसिस? बताइए क्या रोल हो सकता है, कहीं लिखा है क्या। सर जैसे किडनी पे पेशेंट जो होते हैं सर, उनमें हीमोग्लोबिन का काउंट सर कम आने लगा।
जानते हो बेटे, बहुत से ऐसे डिजीज हैं जिसमें कि हीमोग्लोबिन काउंट कम हो जाता है, जैसे कि आपका एनीमिया। एनीमिया क्या है? एनीमिया में सबसे एनीमिया ऐसे डिजीज है जिसमें हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो क्या एनीमिया का मतलब यही हो गया कि हीमोग्लोबिन जहाँ पे मतलब एनीमिया जो भी लीवर से बन रहा है, लीवर डिजीज वो एक्चुअली साइट ऑफ सिंथेसिस हम पहले ही पूछे आपसे, विच इज द साइट ऑफ सिंथेसिस। एक पर्टिकुलर सिंथेसिस साइज हीमोग्लोबिन की होगी, हर जगह थोड़ी बनेगा। दैट इज द बोन मैरो। मैरो। सर वो दूसरा और वाला बताइए ये पायरोक्सिल बॉन्ड का सर बता दीजिए। पायरॉक्सिल बॉन्ड कहाँ पे बताया था हमने इसको? सर वो फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन में आपका पैराडॉक्सिल बॉन्ड, ठीक है। इसमें जो आपका दैट इज एक्चुअली जो फॉस्फेट होता है, समझे कि नहीं? दैट इज इन बिटवीन द फॉस्फेट कंडेंस फॉस्फेट मॉलिक्यूल ए बॉन्ड इज प्रेजेंट, दैट इज पैराडॉक्सिल फॉस्फेट बॉन्ड। समझे दीपक? सर एक बार रिपीट करिए सर, थोड़ा समझ नहीं आया। कुछ फिर से तुम क्वेश्चन बताओ, क्या नहीं समझ में आ रहा है? सर आप जो फॉर्मेशन में बता रहे थे ना वो उसका नहीं, क्वेश्चन तुम क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन सर थोड़ा सा बताओ फिर से। पायरोक्सिल फॉस्फेट बॉन्ड, सर इसका फंक्शन क्या है? नहीं, पैराक्सिल फॉस्फेट बॉन्ड ये है कहाँ पे, यही मैं तुमसे पूछता हूँ ना। तुम्हारे मन में ये चीज जो आया है, ये कहाँ से आया है? आप ही नहीं सर दो बोला। चीज है, एक तो आपका पॉलीपेप्टाइड चेन में जो बनता है वो अलग है, वो ग्लोबिन में बनेगा, समझे कि नहीं? जो हीम सिंथेसिस होगी वहां पे पैराक्सिल फॉस्फेट होगा, ठीक है। पैराडॉक्सिल फॉस्फेट के जो बॉन्ड्स हैं, दैट इज द that present into the paradoxal phosphate component, that is that present into the mitochondria basically। ये आपका जो कंडेंसेशन इसका होगा, ये पैराडॉक्सिल फॉस्फेट जो है ये विटामिन B6 है, इसका नेचर जो है ये, दिस इज द विटामिन B6 एंड अकर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। समझे दीपक? यस सर, यस। एनी अदर डाउट, एनी क्वेश्चन? Okay, student, if you have no doubt, no question, you may leave. Today's class has been completed. पूछिए इमाम। सर कौन सी बुक से ये लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, या कौन सी रेफरेंस बुक लेनी होगी? देखो, रेफरेंस बुक के लिए सबसे बेस्ट टॉटोरा है, टॉटोरा एंड टॉटोरा। उसमें मतलब सारी चीज़ें मिले। थोड़ी रेफरेंस बुक है एक्चुअली, वो इजी बुक नहीं है, मतलब बड़े लेवल मेडिकल की बुक है, टॉटोरा एंड टॉटोरा। और उसके अलावा आपका अगर हो सकता है गॉडकर में तो इतना नहीं दिया होगा, जहाँ तक मुझे पता है। अगर किसी के पास गॉडकर होगी तो एक बार चेक कर लेगा, लेकिन ये इतना डिटेल में नहीं दिया होगा, ठीक है इमाम? ओके सर। हाँ, टॉटोरा ही बेस्ट है। हाँ बताइए सर बेटे। सर टोटोरा वाली जो बुक है उससे तो हमारी 11th-12th की एनसीईआरटी लिखी हुई है सर, वो बहुत टफ लैंग्वेज है उसमें। नहीं नहीं, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप उस चैप्टर में जाइए जहाँ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस है, उतना पढ़िए। उसमें कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा। यस सब बुक के एनी पीडीएफ अदर? आपके पास